Hello students. Today I am going to discuss a topic with you which is not given in your books. This is not in your syllabus, but I am discussing this with you just because by reading about this topic or by understanding this topic, you will better understand the concept of business environment. This analysis is called SWOT analysis. As you can see in the picture, SWOT, SWOT analysis. This is a study which is done to know what are the different factors around a business. If a business firm does this study, does this analysis, it knows whatever is going around its business. Now, what is this SWOT? This we will discuss now. Here, SWOT. S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threats. Now, as you can see in the picture, this strengths and weaknesses, these are internal environment. Internal environment means this is our own. Strength and weaknesses are our own. A firm has its strengths also and some weaknesses also. And opportunities and threats, these are something to do with external environment. These come from outsides. Opportunities also come from outside and threats also comes from outside. And as you can see, strength and opportunities are positive points, means whatever good points we have in our business firm, what our strength, they are our positive points. And opportunities which we get from outside, those opportunities are also positive for us, means they are beneficial for us. And weaknesses and threats both are negative, means whatever weakness we have, जो भी हमारे business में कमियां हैं, whatever wherever we lack, those are our negative points which we should remove. And threats which we get from outside, something some warning signals or something which is coming as a threat to us, which can harm our business, harm our profits, those are negative for us and we have to cope up with it. So as you can see in the picture, strength is positive, it is internal environment. Opportunities are also positive, they are external environment. Weaknesses are negative and they are also internal environment. And threats are external but negative. Now, as you know, internal environment can be controlled, but external environment cannot be controlled. Now, as you can see in the picture, it is the definition given of strength, weaknesses, opportunities, and threats. Strengths, characteristics of a business which give it advantages over its competitors. मतलब हमारे business में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारे competitors से above रखती हैं, हमारे competitors से हम better हैं. Opposite is weaknesses, characteristics of a business which make it disadvantageous relative to competitors. किन चीज़ों में हम अपने competitors से कम हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे competitor के पास हैं but we lack it. Opportunities, elements in our company's external environment that allow it to formulate and implement strategies to increase profitability. मतलब ऐसे कुछ जो बाहर के एनवायरनमेंट में ऐसी कोई भी चीज़ें आ रही हैं या कोई नया कुछ चेंज आ रहा है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स लेके आ रहा है, दोज आर द अपॉर्चुनिटीज़ विच वी कैन एनकैश. और थ्रेट्स वो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट that could endanger the integrity and profitability of the business. मतलब ऐसे कुछ changes या ऐसे कोई factors which are not so good for us, which are not favorable for us, जो हमारे लिए कोई ना कोई खतरा या कोई ना कोई नुकसान लेकर आ रहे हैं. So these are the meanings of strength, weaknesses, opportunities and threats. So now हम देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. Strength, things your company does well, qualities that separate you from your competitors, इंटरनल रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड नॉलेजेबल स्टाफ. आपके पास कोई ऐसे स्टाफ है जो कि अपने काम में एक्सपर्ट है और उसके जैसा शहर में या आपके इंडस्ट्री में कोई नहीं है जो इतना अच्छा काम कर सकता है, उसको कोई चीज़ की नॉलेज है, उसके पास कोई ऐसा मंत्रा है जिससे वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना पाता है. टेंजिबल एसेट्स सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैपिटल, प्रोप्राइटरी एक्सेट्रा. अब वीकनेस क्या हो सकती हैं? थिंग्स योर कंपनी लैक्स, जो आपके पास नहीं है. थिंग्स योर कॉम्पिटिटर डू बेटर देन यू. रिसोर्स लिमिटेशंस, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, वेदर इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स, और यू डोंट गेट गुड मटेरियल या वॉट एवर. अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन,
मतलब आपका पास कोई ऐसा पॉइंट, आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं है जो कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। अपॉर्चुनिटीज़, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, इसमें आ जाएगा अब अंडर सर्व्ड मार्केट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट है जिसके लिए ऐसा मार्केट है जो कि आप अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, आप वहाँ पर जाके अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। फ्यू कॉम्पिटिटर्स इन योर एरिया, आपके एरिया में कॉम्पिटिटर्स ही बहुत कम है, आपकी मोनोपली है, तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इमर्जिंग नीड फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक, लॉकडाउन में आजकल सबसे ज़्यादा बिजनेस सैनिटाइजर्स और मास्क का चल रहा है, तो मास्क इंडस्ट्री जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा टाइम आ गया है जब वो अपने प्रोडक्ट की उनकी बहुत डिमांड है और उस प्रोडक्ट का आजकल इतना ज़्यादा बिजनेस हो रहा है कि शॉर्ट पड़ रहा है सामान। तो ऐसा टाइम अगर आ गया है या ऐसा कुछ अचानक से डिमांड आपके प्रोडक्ट की बहुत बढ़ गई है, तो इस तरह या प्रेस और मीडिया कवरेज ऑफ योर कंपनी ने आपकी प्रेस या मीडिया की कवरेज की है जिससे आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। अब थ्रेट क्या हो सकती है? इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स, नए नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज़ आप आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं जो आपके जैसा बिजनेस कर रहे हैं, आपको टफ कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो वो एक आपके लिए थ्रेट हो सकता है। चेंजिंग रेगुलरिटी एनवायरनमेंट, कुछ नए रेगुलेशंस या कुछ नए एक्ट बन गए हैं जो आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं। नेगेटिव प्रेस और मीडिया कवरेज, आपके बारे में गलत कोई बातें उड़ाई जा रही हैं या आप मीडिया में कुछ आपके लिए गलत बोला जा रहा है जिसकी वजह से लोगों में आपकी कंपनी या आपके प्रोडक्ट को लेके कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो वो हो सकता है। चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स योर कंपनी, कस्टमर जो है वो आपकी कंपनी की तरफ उतना ज़्यादा उतना आपके लिए लॉयल नहीं रहा। तो दीज आर द थ्रेट्स विच कैन harm your company or harm your business and decrease your profitability। अब हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देखते हैं, व्हाट डू यू डू वेल, हम किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं वीकनेसेस, वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, हमारी कौन सी कमियां हैं जिसको हमें दूर करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर योर गोल्स, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है जो आपको, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिसको आप ग्रैब कर सकते हो। एंड थ्रेट्स, व्हाट ऑब्स्टिकल्स डू यू फेस, क्या क्या आपके जो भी आप करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल करना चाहते हो, उसके बीच में कौन सी रुकावटें आ रही हैं, कौन से हर्डल्स आ रहे हैं विच यू हैव टू रिमूव। तो इन सबको करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद अब हम ऐसा एक अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं। जैसा आप फिगर में देख रहे हो, हम अपनी स्ट्रेंथ्स लिखते हैं, स्ट्रेंथ नंबर 1 2 3 जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ हैं कि ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो हमारे इंटरनल पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। फिर हम वीकनेसेस देखते हैं, वीकनेस 1 2 3 कि ये हमारी इंटरनल नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसको हमें रिमूव करना है। अपॉर्चुनिटी 1 2 3, क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है विच इज़ इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको हमें ग्रैब करना है, उसका हमें फ़ायदा उठाना है। और जो जो थ्रेट्स हैं 1 2 3 जितने भी थ्रेट्स हैं वो भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है जो हमें हार्म कर सकते हैं, तो उससे हम कैसे बचें। व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड देम, वी कैन नॉट स्टॉप देम बट वी कैन कोप अप विद देम, कि हम उससे कैसे खुद को बचाएं, कैसे अपने आप को, इस हार्म को भी हम अपने पॉजिटिव तरीके से उसको हम पूरा करें। तो इस तरह से हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को एक पूरा एक एनालिसिस करके उनको लिखते हैं। एंड देन वी ट्राई टू रिमूव अवर वीकनेसेस, वी ट्राई टू इंक्रीज अवर स्ट्रेंथ्स, वी ट्राई टू टेक ओवर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी ट्राई टू कोप अप विथ ऑल द थ्रेट्स। तो ये जो हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं ये हमारा बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट में हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो इस तरह से हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और उसके एनालिसिस करके हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे हमें ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें ज़्यादा जो भी करना है जिससे हमारा बिज़नेस स्मूथली वर्क करे, हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एनालिसिस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने ये आपको इसीलिए एक शॉर्ट वीडियो बना के समझाया है जिससे कि आपको क्लियर होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्चुअली हम करते क्या हैं। ओके, सो दिस इज़ समथिंग टू डू विथ योर बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक। तो ये आप जस्ट नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर्स में। इसको आपको एज अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नहीं, क्योंकि आपने जगह जगह देखा होगा, आप जब इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की तो आपको ये वर्ड्स बार बार सुनने को मिलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो आपके मन में आता होगा कि ये क्या है मीनिंग इसका, तो इसलिए मैंने आपको ये करवाया है जिससे कि आपको
क्लियर हो जाएगा कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में इन चारों चीज़ों की ही बेसिकली स्टडी करते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, इट इज़ वेरी ईजी ऑल्सो, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी मुश्किल लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन आस्क मी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।